Hello students, myself Shipra Mitra and you have come to my channel. The name of my channel is समझो केमिस्ट्री डिटेल में, पीछे लिखा हुआ है. So if you have not subscribed, please subscribe the channel as quickly as possible, and please after watching the video you just suggest me that if you have any problem in any topic or you want that I should discuss some topics with you or solve some numerical problems from any topic, please comment in the comment section so that I get to know that what are your problems and what video I must make. So without wasting time, let's start the video. Today again I have taken some questions from electrochemistry, and one or two are the numerical problems and rest are the very short answer questions. So let's start the video. The first question I have already written. The question is this: the specific conductivity of a saturated solution of AgCl is this much Siemens centimeter inverse at 25 degree centigrade. Calculate the solubility of AgCl at 25 degree centigrade. उसके लिए आपको लैम्डा इन्फिनिटी वैल्यू Ag प्लस का Cl माइनस आयंस का दे दिया गया है. पहले तो हम डिस्कस करें कि AgCl जो है किस टाइप का सॉल्ट है. What kind of salt is AgCl? Now there are some kind of salts जिनको हम कहते हैं sparingly soluble salts. Now sparingly soluble salts means the salts which dissolve in a very less quantity, very little they get dissolved in the solvent, and that's why these salts are known as sparingly soluble salts. And as they dissolve in very small amount, so you can consider that their solutions will be infinitely dilute. बहुत कम डिजोल्व करते हैं, इसलिए डिसोल्यूशन के बाद वो जो सोल्यूशन बनाते हैं वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, और जो सोल्यूशन बनते हैं उसको हम सोल्यूशन का जो मोलर कंडक्टिविटी अगर हम कैलकुलेट करना चाहे तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही हम कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज द solution will be extremely dilute solution you can say, and that's why its molar conductivity can be taken as the molar conductivity at infinite dilution, and as they form saturated solution, and that's why the solution's concentration, that is the molarity, can be taken as the solubility. मोलारिटी को ही हम solubility कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज जितना वो डिजोल्व कर सकता है उतना डिजोल्व कर जाता है, इसीलिए उसका जो मोलारिटी है सॉल्यूशन में, जो कंसंट्रेशन है उसका मोल्स पर लीटर में, वही उसकी solubility भी है, बिकॉज उससे ज्यादा तो डिजोल्व ही नहीं करते. सो हमें पता है कि मोलर कंडक्टिविटी का जो आपका इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं. The formula of molar conductivity is this: lambda m is equal to K into 1000 divided by molarity. Now, as I have already told you, they form very extremely dilute solutions. So इनका जो मोलर कंडक्टिविटी है that will be molar conductivity at infinite dilution. So हम यहाँ पे लैम्डा एम सी नहीं लिख करके हम यहाँ पे लैम्डा एम जीरो लिखेंगे, लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी, चाहे आप कुछ भी बोलो, इन्फिनिटी भी लिखा जाता है एंड लैम्डा एम नॉट भी लिखा जाता है, बिकॉज इट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन. सो नॉट से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, लैम्डा एम इन्फिनिटी से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो. सो वी कैन टेक इट एज lambda m naught or lambda m infinity is equal to K into 1000 divided by molarity. And as I told you that molarity जो कि concentration है इनका वही होगा इनकी solubility भी, because they dissolve in a very very small amount. So we can write K into 1000 divided by solubility. So solubility is equal to क्या लिखा जा सकता है? K into 1000 divided by lambda m naught, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. अब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको Ag प्लस आयन का और Cl माइनस आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो वैल्यूज आपको दे दी गई है. सो लेट अस कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट ऑफ AgCl फर्स्ट ऑफ ऑल. सो लैम्डा एम नॉट ऑफ AgCl will be equal to what? Lambda naught Ag plus lambda naught Cl minus, because AgCl upon dissociation produces one Ag plus ion
and 1 Cl minus ion. So this will be this. So ये values हमारे पास है. These are 61.9 plus Cl minus का 76.3. So if you add this much Siemen centimeter square per mole. This is the unit of molar conductivity. यही है molar conductivity unit. So lambda m naught निकल गया, तो आप जो है यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे. K जो कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो आपको पहले ही बता दिया गया है. It is 2.3 into 10 to the power minus 6. So let us calculate the solubility then. So solubility will be equal to 2.3 into 10 to the power minus 6 into 1000 divided by lambda m naught वैल्यू जो कि 138.2 आ गया. अब इनका जो है हम साथ ही में ना यूनिट्स भी लिख देते हैं. सो इट इज सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स. तो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स ऊपर में लिख देते हैं ताकि अल्टीमेटली आपको जो है दिख जाए कि जो सॉल्युबिलिटी है वो मोल्स पर लीटर में आ जाएगा. इनटू 1000. जब आप 1000 लिख रहे हो तब आपने लिखना है सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर. 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है. और नीचे इसकी यूनिट है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. सो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो रहा है तो सेंटीमीटर रह जाएगा. सेंटीमीटर सेंटीमीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा. सीमेन सीमेन ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा. ये आपका मोल इनवर्स ऊपर जाके मोल हो जाएगा और मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन आ जाएगा. सो लेट अस कैलकुलेट द लेट अस सॉल्व इट. सो इट विल बी 2.3. अगर हम डेसिमल पॉइंट ऊपर नीचे हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने, डेसिमल पॉइंट हटा दिया तो 23 इंटू देखो 10 to the power minus 6 and 1000. ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन का क्या आ जाएगा 10 to the power minus 3 और नीचे है आपका 1382 एंड दिस विल बी इन मोल पर लीटर. ये आपका मोल पर लीटर में आ गया. अगर आपने इसको डिवाइड किया 23 डिवाइडेड बाई 1382 तो ये नंबर आता है 0.0166. ये आ जाता है 0.0166 इंटू 10 to the power minus 3. तो अगर आप मोल पर लीटर इसको साइंटिफिक नोटेशन में मतलब 1 पॉइंट करके अगर आप लिखना चाहते हो तो 1.66 इंटू 10 to the power कितना हो जाएगा -5. -3 तो है ही है. डेसिमल पॉइंट को हमने राइट हैंड साइड में 2 डिजिट तक आगे किया तो इट विल बी 1.66 इंटू 10 to the power -5. इट विल बी इन मोल पर लीटर. सो दिस इज व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl. तो सॉल्युबिलिटी AgCl का मोल पर लीटर में आ गया. अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड इट इज ए वन मार्क क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दिस: हाउ विल द pH ऑफ brine aqueous NaCl solution be affected when it is electrolyzed. आपने चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा, ये सब कुछ बुक में अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है. नाउ द क्वेश्चन इज इन अ लिटिल ट्विस्टेड फॉर्म. आपको पूछ रहा है कि ब्राइन जो कि एक्वस NaCl सॉल्यूशन उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है और इलेक्ट्रोलिसिस में जो सॉल्यूशन का pH है वो pH का क्या चेंज होगा. हाउ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन
will affect the pH of the solution. Solution का pH को किस तरह से affect करेगा? pH बोलने से क्या समझते हो आप? H plus ion concentration. So pH means H plus ion concentration. Whether it will increase or it will decrease, वही आपसे पूछा गया है. तो हमें पता है कि aqueous NaCl solution means NaCl is there, which dissociates completely into Na plus ion and Cl minus ion. अब वाटर भी है बहुत स्लाइटली जो कि पार्शियली आयनाइज करती है H प्लस और OH माइनस आयन में. नाउ द थिंग इज दैट एक्वस सोल्यूशन में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है अगर आपने बताना है तो आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन इज एक्वस, दैट मींस वाटर इज आल्सो देयर इन द सॉल्यूशन, जिसका ऑक्सीडेशन भी हो सकते हैं, रिडक्शन भी हो सकते हैं. तो जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या, कैथोड में कौन सा आयन जाएगा, कैथोड में पॉजिटिवली चार्ज आयंस विल गो एंड देयर दे विल गेट देमसेल्फ रिड्यूस्ड by accepting electron. They will gain electron and get reduced in the cathode and get deposited on the cathode. अब बात यह है कि जो आपका aqueous solution of NaCl है इसमें तो आपका Na plus आयन भी है जिसका रिडक्शन हो सकता है, वाटर का भी रिडक्शन हो सकता है, वो रिएक्शन हम लिख लेते हैं. सो प्रोबेबल रिएक्शंस at cathode. Probable reactions are Na plus gaining electron producing Na metal, या तो वाटर जो है एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एंड साथ में OH माइनस आयंस. तो ये इस तरह से होता है. एक मॉलिक्यूल वाटर मीन्स 1 H plus and 1 OH minus. So 2 molecules of water are there, 2 H plus and 2 OH minus. ये जो 2 H plus ions are they are accepting 2 electrons getting converted to H2 और solution में रह जाएगा 2 OH minus ion. So this is how it is. So hydrogen gas और हाइड्रोक्साइड आयन. तो बात यह है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ विल द पीएच बी अफेक्टेड, बट यहाँ पे कोई किसी भी चीज का आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है प्रोवाइड नहीं किया गया है. बट देन यू हैव स्टडीड इन द लेसन दैट ये जो दो चीज का रिडक्शन हो सकता है कैथोड में, इनमें से सोडियम आयन का रिडक्शन कैथोड में नहीं होता है बिकॉज जो सोडियम आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो नेगेटिव में है. ठीक है, और वो जो नेगेटिव में है दोनों का ही नेगेटिव में है. वाटर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी नेगेटिव में है बट इट इज मच हायर देन द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ सोडियम आयन एंड दैट इज व्हाई प्रेफरेंशियली व्हिच वन विल बी रिड्यूस्ड एट द कैथोड, वाटर विल बी रिड्यूस्ड एट द कैथोड एंड कैथोड में हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा. तो कैथोड में हाइड्रोजन गैस का अगर लिबरेशन हो जाएगा तो व्हिच रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द कैथोड, ये नंबर 1 अगर आप देते हो, ये नंबर 2, देन दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द कैथोड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड एट द कैथोड और सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा सोडियम आयन और साथ में ये हाइड्रोक्सिल आयन, ये दोनों पड़ा रहेगा सॉल्यूशन में. नाउ लेट अस सी व्हिच रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट द एनोड. रिएक्शंस एट एनोड, प्रोबेबल रिएक्शंस एट एनोड, दे कैन बी Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो सकता है Cl2 प्लस 2E और वाटर का भी ऑक्सीडेशन हो सकते हैं. वाटर का ऑक्सीडेशन अगर हुआ तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनेगा, साथ में 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आएगा. सो ये दोनों का अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज को कंपेयर करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज वो भी यहाँ पे दिया नहीं गया है आपको कोई भी, तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि दोनों में से प्रेफरेंशियली ऑक्सीडेशन जो है इसका होगा ये 2Cl माइनस जो है Cl माइनस आयन जो है इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2 एंड Cl2 गैस विल बी लिबरेटेड एट द एनोड और वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा. मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू आपको बता देती हूँ. इसका है इनोड वैल्यू ऑफ दिस वन इज -1.36 वोल्ट एंड ये जो रिएक्शन है इसका इनोड वैल्यू है, ऑफ कोर्स इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इट इज -1.23 वोल्ट.
तो आप देखो -1.23 वोल्ट इज लिटिल हायर देन कंपेयर टू -1.36 वोल्ट। ऑफ कोर्स दो वैल्यू जो है काफी क्लोज है तो क्लोज होने से भी जो ये वाला रिएक्शन है वाटर का ऑक्सीडेशन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है दैट इज लिटिल हायर देन कंपेयर टू दिस वन। सो दिस रिएक्शन शुड टेक प्लेस इन द एनोड। एनोड में ये रिएक्शन जो है होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन एनोड में ये रिएक्शन हो नहीं पाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वाटर का ऑक्सीडेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ये जो रिएक्शन है दिस रिएक्शन इज काइनेटिकली वेरी वेरी स्लो। इसका जो स्पीड है वो बहुत ही कम है और इसका स्पीड को मेंटेन करने के लिए एक्सेस में वोल्टेज चाहिए जिसको कहा जाता है ओवर वोल्टेज, एंड ओवर वोल्टेज रिक्वायर्ड है। इसी वजह से सेकेंड रिएक्शन नहीं हो पाता है ये दोनों में से। ये पहला वाला रिएक्शन जो कि क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन वो हो जाता है एंड हमें एनोड में क्लोरीन गैस मिलता है। तो ओवरऑल रिएक्शन तब क्या है? ये वाला रिएक्शन इट विल टेक प्लेस इन द एनोड, दैट मींस जो आपका कैथोड है उसमें हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है और एनोड में क्लोरीन गैस का प्रोडक्शन होता है। दैट मींस सॉल्यूशन में क्या रहेगा? सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, दैट मींस Na+ और OH- ये दोनों रहेगा, दैट मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट इन दिस प्रोसेस और इसी वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता ही है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड दैट इज वाई बेस होने से सॉल्यूशन क्या हो गया? अल्कलाइन हो गया। सो पीएच वैल्यू क्या होगा? पीएच वैल्यू विल इंक्रीज। तो सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाती है बिकॉज आपको पता है कि अगर 7 से ऊपर पीएच हुआ तो सॉल्यूशन अल्कलाइन, 7 से नीचे हुआ तो जो है सॉल्यूशन एसिडिक होता है। तो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द solution becomes alkaline and that's why the pH of the solution increases. So this is what is the answer of this question. Next question is a very short question कि let us suppose अगर आपको पूछा जाता है कि very interesting question. The question is anhydrous HCl is a bad conductor of electricity, but aqueous HCl is a good conductor. Explain. 1 मार्क के लिए क्या एक्सप्लेनेशन दोगे आप? 1 मार्क के लिए आपको एक्सप्लेनेशन यही देना है कि कंडक्शन के लिए क्या चाहिए? चार्ज कैरियर्स चाहिए, दैट मीन्स आयन शुड बी प्रेजेंट देयर। तो एनहाइड्रस HCl इट इज नॉट हैविंग एनी आयंस इन इट। तो एनहाइड्रस HCl में कोई आयंस नहीं होते हैं व्हिच विल कैरी द चार्ज, बट देन एक्वस HCl में जब HCl गैस कम्स इनटू कांटेक्ट विद वाटर then it has got a strong affinity for water और जो है वाटर में जैसे ही वो वाटर के साथ एसोसिएटेड हो जाता है तब उसको हम HCl एसिड बोल देते हैं। और वाटर हैज अ वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट वाटर डज? H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में HCl को जो है स्प्लिट कर देते हैं। तो इट कंप्लीटली गेट्स डिसोसिएटेड इनटू H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन इन द aqueous solution and that is why what will happen? The solution will act as a very good conductor, but in the anhydrous condition it will act as a bad conductor because anhydrous condition में HCl का कोई आयनाइजेशन नहीं हो सकता और H प्लस एंड Cl माइनस आयन उसमें नहीं हो सकता and that's why it is a bad conductor. So this is what is the answer. We are next quickly taking another very small, very easy numerical problem. The numerical problem is this. A solution of Na NO3 whole 2
is electrolyzed between platinum electrodes using 0.1 Faraday electricity. How many mole of Ni will be deposited at the cathode? तो NiNO2 NiNO3 मीन्स निकल नाइट्रेट, तो निकल नाइट्रेट में निकल आयन है, तो निकल आयन को ऐसे लिखते हैं हम Na+2. Na+2 gains 2 electrons at the cathode and produces Ni. So simply from this reaction we can easily say that 2 moles of electrons, that means 2 Faraday of electricity, when it will be passed through the solution, then 1 mole of nickel will be formed, because 1 Na+2 ion accepts 2 electrons to form 1 nickel atom. So 2 moles of electrons, that means अगर 2 Faraday electricity pass किया जाता है, then 1 mole of nickel will be formed. So we can write 2 Faraday electricity produces 1 mole of Ni. Then 0.1 Faraday electricity will produce how much of nickel? 1 by 2F into 0.1 F. That means it will be 1 by 20, so it will be 0.05 मोल. So इसमें ऑप्शंस आपको दिए गए थे, ये ऑप्शंस मैं लिख देती हूँ आपको. ऑप्शंस ये थे, नंबर 1 it was 0.20, number 2 0.10, number 3 was 0.15 and number 4 was 0.05. So you can clearly see कि number of moles of nickel produced will be 0.05, that means fourth option is correct. So this is how we have solved this question. And then there is a last question which is a very simple question. Say which metal cannot replace H2 from HCl acid. आपका ऑप्शन सही है जिंक, Cu, Mg, Al. तो आपको पता ही है कि जो आपकी मेटल्स जिनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हाईली नेगेटिव है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, दे आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन. वो हाइड्रोजन से ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, सो दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स देन हाइड्रोजन. सो दे कैन डू व्हाट, एसिड से, HCl acid से दे कैन रिप्लेस हाइड्रोजन. बट देन द मेटल्स व्हिच आर
placed below hydrogen in the electrochemical series, जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव में है, वो हाइड्रोजन से weaker reducing एजेंट है. So they don't have any capacity to liberate hydrogen or replace hydrogen from HCl acid. एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, से जिंक और कॉपर का ही हम ले लेते हैं, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज कुछ तो हमें याद होते ही हैं. तो लेट्स सी, जो जिंक है Zn plus 2 to Zn, this is minus 0.76 वोल्ट. और हाइड्रोजन का आपको पता ही है, तो हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू लिख लेते हैं, E नॉट Zn getting converted to Zn plus 2, it is plus 0.76 volt, and that of hydrogen E naught H plus 2H2 ये है 0.00 वोल्ट. सो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर रिएक्शन होती है तो Zn प्लस HCl अगर रिएक्शन होते हैं तो आपको पता है कि ZnCl2 बनते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होते हैं. तो बैलेंस के लिए हम ये 2 लगा दिया. तो जिंक, व्हाई इट कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl एसिड? द रीजन बीइंग जिंक हैज ए ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू. द जिंक क्या कर सकते हैं? जिंक हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड these electrons are accepted by H plus ion from HCl acid and they get reduced easily, and that's why zinc can replace hydrogen from the HCl acid. But ये जो 4 मेटल आपको ऑप्शन में दिया गया है, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, इनमें से जिंक, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, they are all placed above hydrogen in the electrochemical series, and they all have negative standard electrode potential values. That means they are better reducing agent than hydrogen, and that's why they can replace hydrogen from the HCl acid. But copper, it is placed below hydrogen in the electrochemical series, and it has got positive electrode potential value, and so it is a weaker reducing agent than hydrogen. So copper cannot replace hydrogen from HCl acid. So our answer is this one, number 2. So again the same request, this is my new channel, myself Shipra Mitra, again I am repeating. So please, अगर आप मेरे चैनल में आए हो और देख रहे हो वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, सब्सक्राइब करिए, और आप सजेशंस भी दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में कि व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस, व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स यू वांट मी टू डिस्कस, एंड देन आई विल ब्रिंग दोज वीडियोस, दोज टॉपिक्स, problems related to those topics I will solve for you, and thank you so much for watching the video.